as we know that in a trust member, as you can see on your screen, there are few members which are in tension and some of the members are in compression. So in this case, as you can clearly see, it's most of the time in a truss, the bottom chord of a truss is most probably in tension because the load is applied from the upper side, and the top chord members are in compression. Bracing, it could be either in tension or in compression depending upon the geometry of the truss or symmetry of the truss, or depending upon the type of the truss. Here's another practical example. As you can see on your slide, that it's a truss bridge, and in this truss, the top chord of the top chord members would be in compression and bottom chord would be in tension, and obviously diagonal bracing would be somewhat in compression. So the most ideal example, the practical example that we could see of a compression member is the columns. Okay, columns could be either of concrete or steel column as shown on the figure. So a column is an axial member that is applied with almost all of the times with a compressive force. So this is the ideal example of a compression member, steel columns. Now, as we have studied in our previous subject, that the columns could be further subdivided into further two types. There could be short columns and there could be long columns. Short columns are also known as stocky columns, and the long columns are also known as cylinder column. So the basic difference between the short column and a long column is that most of the time in a short columns you would expect the failure of a column to be by crushing of a member. As you can see on your slide, mostly the failure take place by the crushing of concrete. So this is the phenomena how crushing take place, and in the initial upcoming slides you will see how the crushing of a steel column takes place. So short columns, the basic difference between short and long columns is that the failure mode is different for both types. In short column mostly fail by crushing, however in long columns we should be expecting the failure somewhat like this. इसमें फेलियर कैसे होगा कि बकलिंग होना शुरू हो जाएगी. बकलिंग इज द लेटरल डिफ्लेक्शन perpendicular to the load applied. So if load is applied in this direction, so max lateral deflection, that is called buckling, and that is the phenomena जब कोई column जिसमें बहुत ज़्यादा deflection होना शुरू हो जाए, lateral deflection, that column is said to be buckled, and that buckling shape is considered to be a failure for the long columns or cylinder columns. So this is the basic difference between short and long columns. We have studied earlier. So we're going to move to our formula. There's a Swiss mathematician named by Leonhard Euler. You can pronounce it Euler or Euler, some pronounce it by Eulers, derived an equation for buckling load, now called the Euler buckling load. This could be called as buckling load, or it could also be said as a critical load. ठीक है, ये वो लोड होता है, द मैक्स लोड दैट अ कॉलम कुड सस्टेन बिफोर बकलिंग इज कॉल्ड बकलिंग लोड, और द लोड एट विच द कॉलम स्टार्ट्स बकलिंग इज कॉल्ड बकलिंग लोड. सही. सो फार्मूला इसके लिए क्या है? दैट इज पी क्रिटिकल स्टैंड फॉर क्रिटिकल बकलिंग लोड, एंड दैट फार्मूला डिराइव्ड बाय यूलर वाज पी क्रिटिकल इज इक्वल टू n square pi square ei divided by l square. We have studied in the MOS2 subject and this formula, and we have derived this formula. And this n is the number of modes, pi is the pi, e module of velocity, moment of inertia, and l is the effective length. So हमारे पास ये होता है क्रिटिकल बकलिंग लोड का फार्मूला. अगर मैं क्रिटिकल बकलिंग लोड को एरिया से डिवाइड कर दूं तो आई वुड कम अप विद क्रिटिकल स्ट्रेस. So critical stress formula would be pi square. If n value is 1, then it would be pi square ei divided by l square. Pi square ei divided by l square. And if I divide it by area, now if I is equal to, I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जैसे हम पहले पढ़ चुका है, I is equal to a into r square. So जब हम I की जगह ए आर स्क्वायर पुट करेंगे और जब मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा, पी क्रिटिकल को एरिया से डिवाइड कर दूंगा, सो दिस ए वुड बी कट बाय दिस वन. ओके. सो उसके बाद हमारे पास जब मैं इसकी
ये डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको लिख सकता हूँ, इफ आई कुड राइट इट बाय दिस आर वुड कम इनटू द डिनोमिनेटर एंड आई कुड राइट इट एज ए इक्वेशन लाइक दिस हो जाएगा. सो दिस वुड बी इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल स्ट्रेस पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एल बाय आर स्क्वायर. अब हमें पता है व्हाट इज एल बाय आर. एल बाय आर इज द स्लेंडरनेस रेशियो. वी हैव स्टडीड इन MOS2 आल्सो इन टेंशन मेंबर्स में भी हम पढ़ चुके हैं. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द क्रिटिकल स्ट्रेस पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एल बाय आर स्क्वायर हो जाएगा. ये फार्मूला है. इस फार्मूला को हम यूलर क्रिटिकल बकलिंग लोड फार्मूला भी कहते हैं. सही है. सो ओनली एप्लीकेबल, it is written that only applicable to very slender columns or if the stress is within the proportional limit. This formula is developed they say that ये formula जो है it is only applicable to the slender columns या long columns हो जाएगा. ठीक है. और if the stress is within the proportional limit. इसका मतलब क्या है इंशाल्लाह अगली स्लाइड में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो ये फार्मूला है. अगर हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, इशू क्या है, वाई कांट वी यूज दिस फार्मूला फॉर द शॉर्ट कॉलम्स. एक्सपेरिमेंट्स शो दैट द ऑर्डनरी लेंथ कॉलम्स वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रेडिक्टेड बाय द यूलर्स इक्वेशन. वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग कॉलम के लिए तो इसके रिजल्ट्स एक्यूरेट आ रहे हैं, और फॉर द केस ऑफ शॉर्ट कॉलम्स इस फार्मूला से जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज़ मच मोर देन व्हाट इन रियल लाइफ इज़. मतलब ये है कि एक शॉर्ट कॉलम है, लेट्स से उससे अगर इस फार्मूला से उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है, लेट्स से आई वुड से कि 100 कैसे लेट्स से स्ट्रेस ये आता है. हाउएवर इन रियल वो 100 किप्स या 100 केस नहीं बर्दाश्त कर सकता. इट वुड मोस्ट प्रॉब्ली फेल बाय 70. सही है. सो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि दिस फार्मूला इज़ यूज्ड फॉर द या इज़ एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग कॉलम्स. ठीक है. और इफ़ द स्ट्रेस विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट. हाउ फॉर द शॉर्ट कॉलम्स ये फार्मूला एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता. सो क्यों नहीं एक्यूरेट रिजल्ट देता ये हम जाके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. अगर आप नीचे देख लें, एन का मतलब क्या है. एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोड्स. एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोड्स हो जाएगा. अगर हमारे पास एंड कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि पिन सपोर्ट है, अगर इधर भी पिन सपोर्ट है, इधर भी पिन सपोर्ट है, सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कॉलम. दिस इज़ द लेंथ ऑफ द कॉलम. दिस इज़ द लेंथ ऑफ द बोर्ड. दैट मीन्स कि डिफ्लेक्शन 0 से स्टार्ट हुई, it would come out to maximum and then it's going to come to 0 as shown in this video. So इसमें number of modes कितना है, जो cycle complete हो रहा है that is 1. ठीक है. However अगर मैं for some reason if the column is long, अगर column बहुत ज़्यादा long है तो there are chances कि stress reversal होना शुरू हो जाए. पहले इस तरीके से बेंडिंग हो और फिर इस तरीके से बेंडिंग होना शुरू हो जाए. ये टर्म है स्ट्रेस रिवर्सल की, जो कि हम प्रीवियसली टेंशन मेंबर में आपको बता चुका हूँ. सो स्ट्रेस रिवर्सल होना शुरू हो जाए तो इन दिस केस जब साइकिल तो बन जाए तो दैट वुड बी एन वुड बी इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली एन इज इक्वल टू 3 इफ द स्ट्रेस रिवर्सल टेक प्लेस 3 टाइम्स. सो दिस इज एन इज इक्वल टू 3. सो हियर द टर्म इज एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोड्स. के कितने मोड्स हैं. ये ऐसे भी हो सकता है कि कॉलम बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, इस वजह से भी हो सकता है स्ट्रेस रिवर्सल. और अगर कुछ ये भी हो सकता है कि इधर एक सपोर्ट, कोई एक सपोर्ट लगी हुई हो जिसने इसको इधर पकड़ रखा हो, लेटरल सपोर्ट हो सकती है, कुछ ऐसे करके ऐसे लेटरल सपोर्ट लगी हुई है, एंड उसकी वजह से भी स्ट्रेस रिवर्सल हो सकते हैं कि इट वुड बेंड लाइक दिस टू द हाफ वे एंड देन इट गोना चेंज इट्स डायरेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस रिवर्सल होगा. अच्छा, सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ. द फार्मूला वॉज एंड व्हाट्स द इशू दैट वाई कांट वी यूज यूलर्स फार्मूला. हम यूलर्स फार्मूला या यूलर्स इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ कर सकते. टिल नाउ हमने ये पढ़ा कि क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए या क्रिटिकल लोड के लिए फार्मूला क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर. अगर हम आई की जगह ए आर स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एल बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. क्रिटिकल स्ट्रेस ये क्रिटिकल लोड का फार्मूला. दिस इज क्रिटिकल लोड एंड दिस इज क्रिटिकल स्ट्रेस. जब हम भी क्रिटिकल को ए से डिवाइड करें और आई की जगह ए आर स्क्वायर पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है. सही हो गया. दिस इज द यूलर इक्वेशन. बट इसको हम शॉर्ट कॉलम्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते. रीज़न क्या है. अगर हम क्लियरली अगर किसी भी एक स्टील को हम अगर इसका एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें, सो दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस एंड दिस इज द स्ट्रेन. अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करूं तो ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट. दिस इज अ पॉइंट फॉर द प्रोपोर्शनल लिमिट. प्रोपोर्शनल लिमिट तक अगर क्रिटिकल स्ट्रेस है, if the critical stress is within the proportional limit. proportional limit में क्या है कि जितना stress है is directly proportional to strain. so modulus of elasticity क्या है कि bilinear है. जितना stress बढ़ता जा रहा है उतना strain है. variation क्या है, linear variation है up till proportional limit. up till proportional limit हमारे पास क्या है कि stress strain curve that is linear, और जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ, और ये जो
जो कर्व है इधर से लेकर इधर तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है दैट इज लीनियर, और इस लाइन की जो स्लोप होती है दैट लाइन स्लोप इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कांस्टेंट, लीनियर है, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। इज दैट क्लियर? हाउएवर जब हम प्रोपोर्शनल लिमिट से आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड यील्डिंग, FY स्टैंड फॉर यील्डिंग स्ट्रेस। सो समझने की बात यह है कि एक चीज़ है प्रोपोर्शनल लिमिट, एक है यील्डिंग स्ट्रेस। क्रिटिकल स्ट्रेस की बात हो रही है, अगर तो क्रिटिकल स्ट्रेस यहाँ से लेकर प्रोपोर्शनल लिमिट तक सो हम क्या करेंगे कि इधर तो मैं E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ कर सकता हूँ। हाउएवर इधर से लेकर ये जो रीजन है क्रिटिकल स्ट्रेस रीजन, अगर क्रिटिकल स्ट्रेस मेरा यील्डिंग के बाद तो वैसे ही कॉलम फेल हो जाएगा। सो इस वाले रीजन में क्या है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अब जो वेरिएशन हो रही है दैट इज स्ट्रेस इन कर्व लीनियरली वेरी नहीं कर रहा, हाउएवर इट इज़ चेंजिंग नॉन लीनियरली, सो वेरी कर रहा है। हमारे पास ये जो इस रीजन में इस ग्राफ का जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज़ चेंजिंग, दैट इज़ वेरी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उस फार्मूला में जब मैं इस रीजन की बात करूं इधर से लेकर इधर तक, अगर मेरा क्रिटिकल स्ट्रेस इसमें लाई करता है तो आई कांट यूज़ द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, E की वैल्यू मैं यूज़ करूंगा इधर से लेकर इधर तक अगर मेरा क्रिटिकल स्ट्रेस है, और इधर से लेकर इधर तक E की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। और चेंज कैसे होती रहेगी? अगर लेट से मेरे पास क्रिटिकल स्ट्रेस इस जगह पर आ रहा है तो इधर E की वैल्यू मैं इसका यूँ इस लाइन का ऐसे स्लोप ले लूँगा, टेंजेंट ले लूँगा। अगर मेरे पास क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं इस जगह पर देखूँ इधर आ रही है तो फिर मेरे पास E की वैल्यू इधर से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और उस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, दैट वुड बी कॉल्ड E वैल्यू। सो इस तरीके से कॉन्स्टेंटली E की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे जैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू यील्डिंग के प्रोपोर्शनल और यील्डिंग के दरमियान में हम मूव करेंगे क्रिटिकल स्ट्रेस के, तो E की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। कहने का मकसद ये है कि E की वैल्यू हम ये नहीं यूज़ कर सकते। सो दैट्स वाई बेसिक ये जो थ्योरी आई है बेसिक टेंजेंट मॉडुलस थ्योरी, दैट मीन्स इसमें क्रिटिकल लोड फार्मूला में वी वुड बी यूजिंग पाई स्क्वायर ET स्टैंड फॉर टेंजेंट मॉडुलस जब प्रोपोर्शनल और यील्डिंग के दरमियान की बात हो रही है, और देन अगेन I डिवाइड बाय L स्क्वायर। सही हो क्या? अब if you can clearly see value of ET is less than value of E, that means ये जो इस रीजन में है इसमें जो E की वैल्यू है that is less than this। ठीक है, अगर आप स्लोप देख लें, ये स्लोप देखें, इस लाइन का स्लोप देखें और फिर इस लाइन का स्लोप देखें, ऑब्वियसली इस लाइन का जो स्लोप है ये दिस इज ग्रेटर, इस लाइन का स्लोप क्या है E, इस लाइन का, और इस लाइन का स्लोप क्या है ET, और ऑब्वियसली ET इज ग्रेटर देन E इज ग्रेटर देन ET, या अदर पे लिख सकते हैं। सो अब चूंकि मुझे E नहीं यूज़ करना, मुझे ET यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली अगर E की वैल्यू कम है तो इससे क्रिटिकल लोड भी कम आएगा। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस कि इस फार्मूला से अगर मैं यूज़ करता, इफ़ आई वुड हैव यूज्ड दिस फार्मूला, ठीक है, फॉर द शॉर्ट कॉलम्स, उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ET की जगह E यूज़ कर देता तो उसकी वजह से क्रिटिकल स्ट्रेस या क्रिटिकल लोड ज़्यादा आ रहा था। सो इन शॉर्ट ये है कि फॉर द शॉर्ट कॉलम्स मुझे ET यूज़ करना है रादर देन E। अब ये क्यों यूज़ करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि वाई फॉर द शॉर्ट कॉलम्स, वाई नॉट फॉर द लॉन्ग कॉलम्स। सो उसके लिए आगे ग्राफ आ रहा है। सो दिस इज द पॉपुलर थ्योरी, यूलर्स इक्वेशन ये है, दिस इज फॉर द लॉन्ग कॉलम्स एंड फॉर द शॉर्ट कॉलम्स दिस इज द थ्योरी। सिंपल डिफरेंस क्या है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग E वी हैव टू यूज ET। ठीक है, एक और थ्योरी भी है डबल मॉडुलस थ्योरी, कि एक ही फार्मूला में हम दो चीज़ों को इकट्ठा कर दें, कि फार्मूला क्या था पाई स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, और उसके बाद E जो वैल्यू है ये ET इस रीजन के लिए अलग लिख दें, और फिर ऑब्वियसली अगर हम डेरिवेटिव ले लें वाई स्क्वायर DA, ठीक है, तो दिस वुड कम आउट टू बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो पार्ट आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ET से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई स्क्वायर ET I डिवाइड बाय L स्क्वायर, देन अगेन ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा दिस वुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस रीजन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड दिस वुड बी ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा। अगर हमारे पास कौन सी पॉपुलर जो सीरीज है वो ये वाली है, एंड दिस वन हो जाएगा। डबल मॉडुलस थ्योरी भी है बट इट्स नॉट दैट कॉमन।
अच्छा, अब हो क्या रहा है, इफ़ मसला कहाँ हुआ, से वेयर डिड यूजर्स मिस, उसको इशू क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और उससे कुछ ये बिहेवियर ऑब्जर्व हुआ। अगर हम ग्राफ प्लॉट किए गया टेस्ट कर्व, ठीक है, देयर वर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म, और परफॉर्म क्या किया गया कि जैसे जैसे हम स्लेंडरनेस रेशियो चेंज कर रहे हैं तो फेलियर स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, क्रिटिकल स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फेलियर स्ट्रेस की भी जब मैं बात करूँ तो पीक क्रिटिकल की बात करूँ कि जहाँ पे कॉलम फेल हो जाए। सो इफ़ यू कुड क्लियरली सी कि जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ रही थी वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती गई। क्या हो रहा था, वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कम होती गई। सो एज वी मूव्ड टुवर्ड्स द राइट, जैसे जैसे एल बाय आर क्या, स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्रिटिकल स्ट्रेस, पहले ये था क्रिटिकल स्ट्रेस, ठीक है, और ये हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो थी। जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ रही है तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जा रही है। दैट मीन्स कि फॉर द लॉन्गर कॉलम स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ रही है, दैट मीन्स कॉलम लॉन्ग होता जा रहा है। फॉर द लॉन्गर कॉलम द क्रिटिकल स्ट्रेस वैल्यू इज डिक्रीजिंग, जैसे कि ये कॉलम है, स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा है, दैट मीन लॉन्ग कॉलम है और उसके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू कम है। इज दैट क्लियर? और अगर स्लेंडरनेस रेशियो कम है दैट मीन्स उसके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है कि लॉन्ग कॉलम्स फेल हो रहे हैं स्मॉलर क्रिटिकल लोड पे, जैसे जैसे क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ी दैट मीन्स कॉलम लॉन्ग है और उसके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस कि वो कम से लोड पे फेल हो रहे हैं। और अगर शॉर्ट कॉलम है तो उनके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है। सो ये चीज़ है, हमारे पास ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन द क्रिटिकल स्ट्रेस एंड बिटवीन द स्लेंडरनेस रेशियो। ग्राफ तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें रीजन आ गया इलास्टिक बकलिंग का और इन इलास्टिक बकलिंग का, और इधर से ही पता चलेगा कि मुझे ई क्यों यूज़ करना पड़ रहा है फॉर द लॉन्ग कॉलम्स और शॉर्ट कॉलम्स के लिए मुझे ई टी क्यों यूज़ करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो कि मैं प्रीवियस स्लाइड में बताना चाह रहा था। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ रही है हमने ये देखा कि हमारे पास क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू, क्रिटिकल स्ट्रेस ये था कि फॉर द शॉर्ट कॉलम लेट्स से क्रिटिकल स्ट्रेस वाज अबाउट यील्डिंग, कि जब कॉलम का मटेरियल यील्ड कर जाएगा तो दैट इज़ ए क्रिटिकल स्ट्रेस, वहाँ पे जाके फेलियर होता जाएगा। बट जैसे जैसे कॉलम स्लेंडर होता गया तो मेरे पास जो क्रिटिकल स्ट्रेस था जहाँ पे फेल हो रहा था वो मेरे पास यील्डिंग से कम आना शुरू हो गया, और कम आते आते ये आता गया, और देन अगेन दिस इज़ द बिहेवियर। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यील्डिंग स्ट्रेस और एक है प्रोपोर्शनल लिमिट। ये एक लाइन में लगा देता हूँ प्रोपोर्शनल लिमिट की, एंड दिस इज फॉर द यील्डिंग स्ट्रेस। अब इस रीजन को इलास्टिक बकलिंग क्यों कहा गया? इलास्टिक बकलिंग का मतलब ये है, ये अगर रीजन मैं सेपरेट कर दूं, एक ये रीजन है, ठीक है, और एक इधर रीजन आ जाता है। सो इफ आई पॉइंट आउट दिस रीजन एंड दिस रीजन, तो अब हो क्या रहा है कि इस रीजन के लिए क्रिटिकल स्ट्रेस फार्मूला ये है पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाय एल बाय आर स्क्वायर। ई क्यों यूज़ कर रहे हैं? ई यूज़ कर रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट ये है, यहाँ तक क्या है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है दैट इज़ लीनियर, दैट इज़ मीन कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम ई यूज़ करेंगे। हमारे पास ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, प्रोपोर्शनल लिमिट का क्या मतलब था कि जैसे जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट तक हम कहेंगे कि स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, इलास्टिक मॉडुलस यूज़ करेंगे, तो इस वजह से इलास्टिक बकलिंग कहते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये है कि अप टिल प्रोपोर्शनल लिमिट अगर हम लोड अप्लाई करते हैं एंड वंस वी रिमूव द लोड, जब हम लोड उसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा। यहाँ तक डिफॉर्मेशन कहाँ क्या हो रही है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ इस रीजन में क्या हो रहा है कि मैं जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाता जाऊँगा, इफ़ आई रिमूव दैट स्ट्रेस तो क्या हो जाएगा कि वो मेंबर अपनी शेप में वापस आ जाएगा। सो प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो बकलिंग होती है, या अगर बकलिंग होने का चांस है, लेट्स से कि ये फार्मूला है, ये क्रिटिकल स्ट्रेस है, इधर वो कॉलम फेल हो गया एंड दिस क्रिटिकल स्ट्रेस इज लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल स्ट्रेस इफ इट इज़ लेस देन प्रोपोर्शनल लिमिट तो हम ये कहेंगे कि ये जो क्रिटिकल स्ट्रेस, दैट मीन्स कॉलम तो फेल हो गया बट बकलिंग कौन सी हुई? इलास्टिक बकलिंग हुई। दैट मीन्स कि अगर मैं वो लोड रिमूव करूं तो क्या हो जाएगा कि मेंबर अपनी शेप वापस अज्यूम कर लेगा। अगर मैं इसको क्लियरली हाईलाइट करा सकूं कुछ ऐसे कि एक मेंबर ये था, इसके ऊपर मैंने लोड अप्लाई किया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और इसका ये कुछ बेंडिंग हुई कुछ इस किस्म करके, ठीक हो गया। सो अगर मैं ये कह दूं कि ये है इसका एफ क्रिटिकल,
ठीक है, पी क्रिटिकल कहते हैं कि पी क्रिटिकल लोड अप्लाई हुआ और जिसकी वजह से बकलिंग हो गई और फेलियर हो गया। अगर ये पी क्रिटिकल इफ़ इट इज़ लेस देन, मतलब अगर यील्डिंग वाले लोड, यील्डिंग लोड से, या एफ पी क्रिटिकल भी कह सकते हैं, एफ क्रिटिकल कह सकते हैं, इफ़ इट इज़ लेस देन पी यील्डिंग, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक बकलिंग। बट अगर वो क्रिटिकल लोड या क्रिटिकल स्ट्रेस इफ इट इज़ ग्रेटर देन प्रोपोर्शनल लिमिट, सॉरी मुझे ये कहना चाहिए था, माय मिस्टेक, मैं ये कहना चाहिए था कि अगर पी क्रिटिकल इट इज़ लेस देन पी प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल तक जो हमारे पास लोड अप्लाई हो रहा था, ठीक है, अगर उधर तक है तो हमारे पास क्या है, इलास्टिक बकलिंग है। और अगर प्रोपोर्शनल लिमिट से क्रॉस कर गया तो दैट केस वुड बी कॉल्ड इन इलास्टिक बकलिंग। इट्स दैट सिंपल, ठीक हो जाएगा। सो अभी तक हमने ये बात की कि अगर प्रोपोर्शनल लिमिट है, क्रिटिकल स्ट्रेस है, तो हमें ये यूज़ करनी चाहिए वैल्यू, ई की वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। एंड वंस वी क्रॉस द प्रोपोर्शनल लिमिट तो हमें ऑब्वियसली जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट इज़ वेरिंग। अगर ग्राफ देखेंगे यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक है, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा कि हमारे पास दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इस पॉइंट के लिए ये होगा, इस पॉइंट के लिए इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट के लिए इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो ये चेंज होगा। तो दैट मीन्स कि इस रीजन के लिए मुझे ई नहीं यूज़ करना, आई वुड बी यूजिंग ई टी। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ताकि मैं डिटेल में बता सकूँ, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो अगर ये समझ में आ गया तो देन अगेन दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद इंशाल्लाह सिंपल है। सो हमारे पास ई हो गया और ई टी हो गया, और ये रीजन क्या होगा, अगर इधर से लेकर और इधर तक की बात हो रही है तो दिस वुड बी कॉल्ड इन इलास्टिक बकलिंग, सही है, और ये हो जाएगा इलास्टिक बकलिंग। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि फॉर द सिलेंडर कॉलम्स हमारे पास जो बकलिंग हो रही है वो क्या हो रही है, इलास्टिक बकलिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम फार्मूला में ई यूज़ करेंगे। हाउएवर फॉर द शॉर्ट कॉलम्स हमारे पास बकलिंग क्या हो रही है, इन इलास्टिक बकलिंग हो रही है, और हम ई की बजाय ई टी यूज़ करेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप आप क्लियर वेलकम। अच्छा, these are some of the assumptions that we're gonna make before getting into the formula कि सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, के अगर एक क्रॉस सेक्शन है तो सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ है। दैट मीन्स कि लोड अप्लाई हो रहा है अगर, तो हमारे पास उसकी वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं दैट वुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन। अगर एक मेंबर है उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर जो स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज हैं दैट वुड बी कांस्टेंट। या अगर एक साइड पे कंप्रेशन आ रही है तो दूसरी साइड पे उतनी ही टेंशन होगी। नो इनिशियल इंटरनल रेजिडुअल और वेल्डिंग स्ट्रेसेस, दैट मीन्स अगर एक स्टील का मेंबर है तो उसमें इनिशियल ऑब्वियसली वेल्डिंग स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। कि अगर एक मेंबर है, लेट्स से अगर इफ दिस इज़ द डब्ल्यू मेंबर, अगर फ्लैंज को मैंने ये फ्लैंज है और वेब है और इस रीजन को मैंने वेल्ड आउट किया हुआ है, दैट मीन्स ये होगा कि ऐसा ना हो कि ये अगर इसकी पहले कूलिंग होना शुरू हो जाए, जो कि हो जाती है, और वेब मेंबर्स की बाद में कूल हो रहा हो और वेल्ड रीजन है, तो इसकी वजह से एक इनिशियल रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो हम आइडियल कंडीशन ये है कि देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेसेस। कॉलम इज परफेक्टली स्टेट, दैट मीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉलम शुड बी परफेक्टली स्टेट। अगर नहीं होगा तो देयर वुड बी इनिशियल मोमेंट्स डिक्लेयर्ड हो जाएगा, शुड बी परफेक्टली स्टेट। द लोड एक्ट थ्रू द सेंट्रोइडल एक्सिस, आइडियल केस क्या है कि बिल्कुल सेंटर में से लोड पास करेगा कॉलम के। बोथ सपोर्ट्स आर पिन्ड, दैट मीन्स फॉर द आइडियल फॉर द इनिशियल जब हम फार्मूला डेवलप करने लगते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि दोनों सपोर्ट्स पिन्ड हैं। जब हम डिराइव करेंगे तो हम इंशाअल्लाह आप देख लेंगे इस चीज़ को। एंड ट्विस्टिंग अ डिस्टॉर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन डजंट अकर, दैट मीन्स कि कॉलम में ट्विस्टिंग नहीं होगी, सही हो गया। सो दिस वुड बी द दीज आर द सम ऑफ द assumptions। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसके फार्मूला पे, जो हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है। ये फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ MOS2। हाउएवर वी गोना रिपीट दैट थिंग। हमें ये पता है कि एक ये मेंबर है, लेट्स से इफ दिस इज द मेंबर, अगर एक कॉलम है, ठीक है, इफ दिस वाज द कॉलम, ठीक है, और इसकी इधर भी सपोर्ट थी पिन, और ये रीजन में था, एंड इफ दिस लोड वाज बीइंग अप्लाइड, अगर मैं उसी को लेटरली मूव करके ऐसे कर दूँ, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड देयर इज द लेटरल डिफ्लेक्शन y, और ये x रीजन पे है, ये हमारे पास पी क्रिटिकल लोड है, दैट मीन्स ये जो y था डिफ्लेक्शन का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू मूवमेंट। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिफ्लेक्शन इज फोर्स एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द मूवमेंट हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू मूवमेंट। हाउएवर ये जो चीज़ है, अगर
दिस वुड बी मोस्ट सूटेबल अगर मैं इसको स्लाइड बुक से दिखाऊंगा, बट इनिशियल स्टेप्स ये देख लें कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो दिस वुड बी वाई डबल डैश, और ये जो एम था दैट इज मोमेंट, एंड मोमेंट वुड बी इक्वल टू पी क्रिटिकल अगर क्रिटिकल लोड है, ठीक है, इनटू वाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, सो पी क्रिटिकल इंटू वाई डिवाइड बाई ई आई, और अगर मैं इसको साइन की उस तरफ ले आऊँ तो मेरे पास ये रीजन बन जाएगी, दिस इक्वेशन वुड बिकम लाइक दिस हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफ्लेक्शन एंड एम इज इक्वल टू पी क्रिटिकल वाई इंटू ई आई. अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या था, जैसे कि हम इसमें पढ़ चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए कॉस, उधर हम डायरेक्टली लिख देते थे कि व्हाट इज सी इज अंडर रूट पी ओवर ई आई. अगर आप प्रीवियस नोट्स में जाके देखेंगे कॉलम्स के टॉपिक में तो उधर आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगी, आप वो भी लिख सकते हैं, बट हम थोड़ी सी रिवाइज कर रहे हैं कि ए कॉस सी एक्स प्लस बी साइन सी एक्स हो जाएगा. ये जनरल सोल्यूशन है. यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर अगर हम इस इक्वेशन तक आ रहे हैं तो देयर इज डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व, जो कि आपके रिक्वायरमेंट नहीं है. तो देन अगेन जनरल सोल्यूशन जो इस चीज़ का था दैट इज वाई इक्वल टू ए कॉस सी एक्स प्लस बी साइन सी एक्स हो जाएगा. ये आपको याद करना पड़ेगा, वेयर सी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर ई आई. फिर हम क्या करते थे कि इसमें बाउंड्री कंडीशंस पुट कर देते थे. इसमें बाउंड्री कंडीशंस क्या थी कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी, अगर मैं इससे स्टार्ट हूँ, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है. इधर x भी 0 है और इधर y भी 0 है क्योंकि लेटरल डिफ्लेक्शन नहीं है, इधर y है. देन अगेन दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू l, यहाँ से लेकर अगर इधर तक आ जाऊँ तो x इसके बराबर आ गया, ठीक है. x वुड बिकम इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू 0. इधर भी लेटरल डिफ्लेक्शन क्या है 0 है, सो इधर भी लेटरल डिफ्लेक्शन y 0 है, इधर भी y 0 है. सिंपली क्या है, इधर x इज इक्वल टू 0, इधर x इज इक्वल टू l हो जाएगा. सिंपली क्या करेंगे, पहली बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है. सो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, x 0 है और y 0 है. सो अगर y 0 है दैट मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, और x 0 है, अगर ये टर्म अगर x है तो ये 0 हो जाएगा, a cos 0 प्लस b sin 0, ठीक हो जाएगा. sin 0 तो 0 ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. वी वुड बी लेफ्ट विद a cos 0 और cos 0 दैट मीन्स हमारे पास cos 0 1 होता है और a वुड बिकम इक्वल टू 0. सो पहली बाउंड्री कंडीशन पुट की और हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, a इज इक्वल टू 0. अब ये चीज़ a इज इक्वल टू 0 और ये हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे क्या, फिर से इसी इक्वेशन में, ठीक है. ये हम पहले कर चुके हैं. अब दोबारा से अगर इस बाउंड्री कंडीशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू 0, y 0 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू l, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a अगर 0 है, a की टर्म अगर 0 है इसमें पुट करूँ तो हमारे पास ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी. सो आई वुड बी लेफ्ट विद y इज इक्वल टू 0 प्लस b साइन सी एल, b साइन सी एल, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, l पुट कर देंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू b साइन सी एल हो जाएगा. अब जब ये टर्म आ जाएगी, इससे आगे मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ. देन अगेन स्टेप्स क्या थे कि हमारे पास b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट का अगर उस तरफ चला जाएगा, b इज द कांस्टेंट, अगर ये इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो दिस वुड बी 0. ऑल आई वुड बी लेफ्ट विद इक्वल टू साइन सी एल इक्वल टू 0, ठीक है. इसको अगर मैं आपको बुक से दिखा दूँ, आपको ये डेरिवेशन फुली बुक में मिल जाएगी. चैप्टर नंबर 4 कंप्रेशन मेंबर्स है, एंड दिस इज द थिंग, पेज नंबर 100. सो आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर आप दिस इज द थिंग, हम इधर तक पहुँच चुके हैं. सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं पुट कर दूंगा तो ऑल आई वुड बी लेफ्ट विद साइन सी एल इज इक्वल टू 0. अब सी एल कब 0 हो जाएगा, अगर ये मैं साइन उस तरफ ले जाऊँ, साइन इन्वर्स 0 हो जाएगा. सी एल अगर इधर रखूँ और ये साइन उस तरफ 0 के ले जाऊँ तो साइन इन्वर्स 0, और साइन इन्वर्स 0 कब होता है, व्हेन इट इज़ 0, ठीक है. साइन 0 कब होता है, जब एंगल 0 हो, एंगल पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, तो अप टू सोन एंड पाई हो जाएगा. सो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सी एल इक्वल टू एन पाई, ठीक है. ये हमारे पास टर्म बच गई, सी एल इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा. अब सी इटसेल्फ किसके बराबर है, इज इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर ई आई, ठीक है. तो अगर सी एल है तो ये हमारे पास सी की जगह पुट कर दिया पी क्रिटिकल डिवाइड बाई ई आई इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई. अब मुझे फार्मूला चाहिए किसके लिए, पी क्रिटिकल के लिए फार्मूला डेवलप करना है. तो मुझे क्या करना है, पी चाहिए. तो आई वुड बी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, पी क्रिटिकल डिवाइड बाई ई आई, एल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. दिस टर्म वुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, दिस टर्म वुड बिकम एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक हो गया. अब उसके बाद क्या किया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के बाद हम क्या आ जाएंगे कि अगेन मुझे पी क्रिटिकल चाहिए. सो ई आई टर्म इधर आ जाएगी, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा. तो पी क्रिटिकल का फॉर्मूला आ गया मेरे पास ये.
सो दिस इज द फार्मूला फॉर द पी क्रिटिकल इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। और ये वही फार्मूला जो यूलर्स वाला फार्मूला है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि आप MS2 में भी कर चुके हैं। सो दिस इज द यूलर्स फार्मूला पी क्रिटिकल इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। दिस इज हाउ इट वाज गोइंग टू बी डिराइव्ड। ठीक है, हमारे पास डिराइव हो गया। और देन अगेन ये फार्मूला जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि एन क्या चीज़ होती है, एन इज़ द नंबर ऑफ मोड्स। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ थी अप टिल नाउ। अच्छा, हमारे पास ये अगर हमारे पास पिन सपोर्ट्स हो, ठीक है, अगर दोनों एंड पर सपोर्ट्स हो तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ दैट इज इक्वल टू, अगर एन की वैल्यू हम 1 कंसिडर करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, आई की जगह हम पुट कर देंगे देन अगेन ए आर स्क्वायर को, और अगर मैं इसको देन अगेन आर स्क्वायर टर्म नीचे आ जाए तो दिस वुड बिकम एल बाई आर स्क्वायर पी क्रिटिकल। एंड पी क्रिटिकल से अब आ जाएंगे, जब मैं इसको पी क्रिटिकल को एरिया से डिवाइड करूंगा, एरिया से कट हो जाएगा, सो इट वुड बिकम पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द क्रिटिकल स्ट्रेस फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर द क्रिटिकल लोड, दिस इज द फार्मूला फॉर द क्रिटिकल स्ट्रेस हो जाएगा। टिल नाउ दिस वाज द, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए हो, ठीक है, आप इस बुक में भी आके देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसमें भी पढ़िए। बट देन अगेन स्लाइड्स में भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी होपफुली। अच्छा, अभी तक ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, वी अज्यूम दैट दी बोथ सपोर्ट्स आर पिन एंडेड। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर हमारे पास फार्मूला क्या था, पाई स्क्वायर क्रिटिकल स्ट्रेस का जो फार्मूला क्या था, इट वाज पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाई एल बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के वाली टर्म क्या है? के इज़ द फैक्टर दैट्स गोइंग टू डोनेट कि व्हाट इज़ द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अगर बाउंड्री कंडीशंस क्या हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बाउंड्री कंडीशंस की वजह से ये के की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। अगर तो दोनों सपोर्ट्स पिंड होती, ठीक है, लाइक इन दिस केस, इस केस में क्या है कि ये पिंड है और ये फिक्स्ड है, सो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ कितनी बच जाती है? इनफैक्ट ये टोटल लेंथ है, ये अनसपोर्टेड लेंथ है, और इफेक्टिव लेंथ क्या है कि यहाँ से डिफ्लेक्शन यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, ये इधर तक है, और ये, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शंस पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैक्स डिफ्लेक्शन क्या, फिर 0 हो जाएगा। सो दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। और ये कितना बन जाता है फॉर दिस कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस के लिए आई गिवन है, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव लेंथ। हम पहले से पढ़ चुके हैं। फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये जो लेंथ हो जाएगी एल बाई आर, ये एल नहीं रहेगा, दिस वुड बिकम 0.7 टाइम्स एल फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब उधर से 2.05 कैसे बन गया? ठीक है, अगर मैं करूँ, अगर इस इक्वेशन को मैं ये लिखूँ, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन, अगर ये इस चीज़ को 2.05 को भूल जाए, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल की जगह, दिस एल इज़ द इफेक्टिव लेंथ फॉर द पिन सपोर्ट्स, तो ये था पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर। फॉर दिस कंडीशन इट वुड बी 0.7 एल स्क्वायर, 0.7 एल स्क्वायर। अब जब मैं इसको यूँ लिखूँ कि दिस वुड बी पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर की जगह 0.7 एल स्क्वायर लगूँ, तो 1 डिवाइड बाई 0.7 का जो स्क्वायर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0.7 स्क्वायर, दिस वुड कम आउट टू बी 2.05, दिस वुड कम आउट टू बी 2.05। ठीक है, सो आप बेशक ये लिख दें 2.05 पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई एल स्क्वायर फॉर दिस कंडीशन, या आप उसको यूँ बोल सकते हैं, और उसने इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया कि आई की जगह ए आर स्क्वायर पुट कर दिया और ये फार्मूला जनरेट कर दिया, या आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एल की जगह 0.7 एल का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। सो ये कन्फ्यूज नहीं होना कि ये 2.05 क्या आएगा, ये 2.05 कैसे आया, सिंपली उसने क्या जाएगा, एल की जगह क्या लिख दिया, 1 डिवाइड बाई 0.7 स्क्वायर, 0.7 एल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 0.7 का स्क्वायर लेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो दिस वुड कम आउट टू बी 2.05 हो जाएगा। सो दिस मीन्स द सेम फॉर दिस बाउंड्री कंडीशन, हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, अगर ये बाउंड्री कंडीशन तो क्रिटिकल स्ट्रेस फार्मूला आपके पास ये आ सकता है। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट स्लाइड में। सो दिस इज द थिंग, फॉर डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास क्या होता है कि इनिशियली क्या था, इनिशियली वी वर गिवन विद कि दोनों कंडीशंस क्या थी, दोनों पिंड थी, और फार्मूला था पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। हाउएवर फॉर द, अगर दोनों सपोर्ट्स फिक्स्ड हो जाए,
ठीक है। तो हमारे पास इसकी डिफ्लेक्शन कुछ ऐसी होगी और इफेक्टिव लेंथ वुड बिकम इक्वल टू 0.5 टाइम्स एल, हियर के इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। अगर सपोर्ट कंडीशन ये है कि ये फिक्स्ड है और ये पिंड है तो हमारे पास के की वैल्यू 0.7 एल हो जाएगा, और अगर ये फिक्स्ड है और ये फ्री एंड है तो दैट वन वुड बिकम 2 टाइम्स एल हो जाएगा। सो आपने डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशन इधर से जाकर देखना है कि इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो आप इधर से देखेंगे। इधर देख लें वैसे गौर से कि अगर पिंड सपोर्ट्स हैं तो थियोरेटिकल वैल्यू तो 0.5 है। देन अगेन जब मैं फिक्स की बात कर रहा हूँ, फिक्स के लिए रोटेशन भी फिक्स्ड है एंड ट्रांसलेशन भी फिक्स्ड है। रोटेशन का मतलब ये है कि इधर रोटेट भी नहीं हो सकता और ट्रांसलेट लेटरली भी मूव नहीं हो सकता, दोनों चीज़ें, ठीक है, कि रोटेट भी नहीं हो पा रहा और ट्रांसलेट भी नहीं हो पा रहा, इन दोनों चीज़ों को उसने फिक्स किया हुआ है। इस सपोर्ट का मतलब क्या है, रोटेशन फ्री बट ट्रांसलेशन फिक्स्ड, कि रोटेट तो हो सकता है, ठीक है, रोटेशन का मतलब ये कि इधर रोटेट तो हो सकता है बट इट कांट मूव ट्रांसलेशनली। अगर ये फिक्स कंडीशन है, रोटेशन फिक्स्ड बट ट्रांसलेशन फ्री, कि रोटेशन को उसने फिक्स कर दिया, ठीक है, देयर इज नो रोटेशन नहीं हो रही, वो अगर जैसे ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, रोटेशन नहीं हुई, ऐसे ही रहा, बट ट्रांसलेशनल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेटरली मूव हो रहा है। सो दिस इज द कंडीशन। एंड लास्ट वन इज द हिंज, कि रोटेशन भी फ्री है, ट्रांसलेशन भी फ्री है, इट कुड आल्सो रोटेट, इट कुड आल्सो ट्रांसलेट हो जाएगा। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, ये इसमें डिफरेंस है कि इस चीज़ को गौर से समझना है कि रोटेशन तो नहीं बट उसने ट्रांसलेशनल लेटरली मूव कर गया, और उनके लिए रिस्पेक्टिवली के की वैल्यूज़ गिवन है, थ्योरेटिकल वैल्यूज़ ये है, डिज़ाइन वैल्यूज़ ये हैं। अब इनमें बेसिक डिफरेंस ये है, देखिए अगर फार्मूला गौर से देखें, ठीक है, इफ़ यू क्लोजली लुक एट द फार्मूला ऑफ द क्रिटिकल लोड फार्मूला, सो व्हाट इज़ द फार्मूला, फार्मूला की वैल्यू ये है कि मेरे पास जैसे ये है पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाई के एल बाई आर स्क्वायर। सो जितनी कम के की वैल्यू होगी उतना ही उसका क्रिटिकल लोड ज़्यादा होगा। सही हो गया, फिर से सोचना है कि जितनी के की वैल्यू कम होगी उतना ही क्रिटिकल लोड ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? क्रिटिकल लोड का मतलब यह है कि इतने लोड पर जाके वो बकल कर जाएगा या फेल हो जाएगा। अच्छा, अब कौन सी वैल्यू यूज़ करनी चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू यूज़ करें या फिर रिकमेंडेड डिज़ाइन वैल्यू व्हेन आइडियल कंडीशंस आर अप्रॉक्सीमेटेड, ये यूज़ करें। अच्छा, जैसे जैसे फिक्स हो रहा है, ठीक है, फिक्स कंडीशन के लिए क्या हो रहा है कि चूँकि फिक्स सपोर्ट क्रिएट करना इन रियल लाइफ बहुत मुश्किल है, ठीक है, थियोरेटिकल दैट मीन्स कि आइडियल कंडीशन है कि एक कनेक्शन डेवलप किया जिसमें वो रोटेशन भी फिक्स हुई पड़ी है, ट्रांसलेशन भी फिक्स हुई पड़ी है, वो डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू अगर मैं कम यूज़ करता, लेट से मैं अगर 0.5 यूज़ करूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्रिटिकल लोड की वैल्यू लेट से आ जाती है 100, जबकि अगर मैं के की वैल्यू 0.65 यूज़ करूँ तो फिर क्रिटिकल लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ी उससे कम आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो सेफ्टी मार्जिन रखने के लिए हम डिज़ाइन वैल्यूज़ ये यूज़ करते हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा वाली होंगी, क्योंकि जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी क्रिटिकल लोड उतना कम होगा। और कम का मतलब ये है कि हम ऑन द सेफर साइड रहेंगे, कम से कम कितने लोड पे जाके वो फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं लेट से के की वैल्यू यूज़ करूँ 0.5, उससे आ रहा है क्रिटिकल लोड 100, जबकि डिज़ाइन वैल्यू जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम यूज़ क्या करते हैं, 0.65 यूज़ करते हैं। तो अगर उससे क्या हो रहा होगा कि 100 लोड जैसे आइडियली अगर डेवलप करें तो 100 लोड बर्दाश्त कर सके, बट अगर हम 0.65 यूज़ करें तो क्या पता वो 85 पे फेल हो जाए। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, डिज़ाइन जब ऑफिस में देखा जाता है कि हम डिज़ाइन पहले चाहिए कि ऑन द सेफर साइड सेफ्टी, हालांकि पता है कि वो लोड 100 के ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, क्रिटिकल लोड है, बट ऑन द सेफर साइड हम थोड़ी सी उसकी वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। हाउएवर फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आपने थियोरेटिकल वैल्यूज़ ही यूज़ करनी है फॉर द थियोरेटिकल पॉइंट, क्योंकि अभी तक ये यूज़ कर रहे हैं 0.5, 7, 1। सो फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। हाउएवर फॉर द डिज़ाइन पर्पसेस जब हम ऑन द सेफर साइड रहने के लिए हम के की वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी क्रिटिकल लोड की वैल्यू कम होगी। दैट मीन्स हम जानबूझकर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम एज्यूम करते हैं या कम कंसिडर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टेबल। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड देन इंशाल्लाह ताला अगली जो पूछे इनमें तो मुश्किल नहीं है। सो हमारे पास फॉर द LRFD देन अगेन इसमें भी दो अप्रोचेज हैं, एक LRFD अप्रोच है, एक ESD अप्रोच है। LRFD में देन अगेन हमारे पास आ जाएगी, हम उसका फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे 1.2 डेड 1.6 लाइव जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, और इसके लिए रेजिस्टेंस फैक्टर, रेजिस्टेंस रिडक्शन फैक्टर फॉर द कंप्रेशन मेंबर्स कितना होता है 0.9।
इन केस ऑफ जो टेंशन मेंबर्स था हम फ्रैक्चर भी देख रहे थे, यील्डिंग भी देख रहे थे, बट इसके लिए सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ नॉमिनल कंप्रेसिव लोड आ रहा है, हम उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। वी आर नॉट डीलिंग विद फ्रैक्चर और एक्सेसिव डिफॉर्मेशन। हमें सिर्फ ये करना है कि पी एन कैलकुलेट करना है और उसको मैं 5c से मल्टीप्लाई कर दूंगा विच इज़ 0.9, तो हमारे पास हो जाएगा, और पी अल्टीमेट शुड बी लेस देन दिस। फॉर ए एस डी मेथड हम पी एन को डिवाइड कर देते हैं रेजिस्टेंस फैक्टर से या फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, विच इन दिस केस फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन दैट इज 1.67 हो जाएगा। सही हो गया। सो सर्विस लोड को जब हम ये सर्विस लोड आएगा, उसको हम नॉमिनल लोड को जब 1.67 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा। देन हमारे पास अलाउबल स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ए एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये हम इंशाल्लाह ऐसी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें तब क्लियर होगी। पी ए अलाउबल लोड आ जाएगा जब मैं उसको ग्रॉस एरिया से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो मेरे पास अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से कम आना चाहिए, जो मैं इस फार्मूला से कैलकुलेट करूँगा, एफ क्रिटिकल डिवाइड बाय 1.67, तो दैट वुड कम इक्वल टू 0.6 एफ क्रिटिकल हो जाएगा। सही हो जाएगा। सो हमारे पास अलाउबल लोड की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट शुड बी लेस देन एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज़ इशू ये आ रही है कि अच्छा जैसे फार्मूला ये था, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि दिस इज़ द ग्राफ, हमें ये पता है, कैसे पता चलेगा व्हाट्स दैट लिमिट, व्हाट इज़ द लिमिट कि हाँ भाई अगर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू ये होगी तो तब हम उसको इलास्टिक कंसिडर करेंगे, और अगर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इतनी होगी तो फिर जाके हम उसको इन इलास्टिक कंसिडर करेंगे। एंड देन अगेन सोल पर्पस क्या था कि हमें क्या यूज़ करना है, या तो ई यूज़ करना है या ई टी यूज़ करना है। फॉर द इलास्टिक पार्ट हमें ई यूज़ करना है, विच फॉर द लॉन्ग कॉलम्स, और फॉर द शॉर्ट कॉलम्स हम ई की जगह ई टी यूज़ करें, ठीक है। मेन इशू यही है। और वो कैसे पता चलेगा कि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या था सिलेंडरनेस रेशियो का, एल बाई आर, और के उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि उसकी बाउंड्री कंडीशन डिटेक्ट कर रहे हैं। एल की जगह के एल यूज़ करें चूँकि बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट हो सकती हैं, तो के एल बाई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या हम ये फार्मूला यूज़ करें, एफ ई ऐसे कैलकुलेट करें, या के एल बाई आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि हम उसके लिए ये इन इलास्टिक पार्ट वाला यूज़ करें, ठीक है। सो उसके लिए क्या है कि जो बाउंड्री है वो है ये वाली, दिस इज द फार्मूला, कि अगर इस फार्मूला की वैल्यू है 4.7 ई डिवाइड बाई एफ वाई, ई इलास्टिक मॉडुलस है, एफ वाई यील्डिंग स्ट्रेंथ है 4.7, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर के एल बाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज़ क्या, पहले ये वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, के एल बाई आर। अगर के एल बाई आर इज़ ग्रेटर देन 4 दिस थिंग, तो फिर तो ये वाला फार्मूला आएगा। और अगर के एल बाई आर है, ठीक है, वो इससे कम है, तो फिर ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, फिर एफ ई यूज़ करेंगे। इट्स दैट सिंपल। तो लिमिट क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई, ये बाउंड्री क्रिएट करती है कि अगर के एल बाई आर की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो फिर ये चीज़ यूज़ होगी, और अगर के एल बाई आर की वैल्यू इससे कम है तो फिर ये चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। और इसके लिए इसको फर्दर उसने अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। व्हाट इज़ दिस, ई स्टैंड फॉर, इस ई स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, एफ ई स्टैंड फॉर इलास्टिक स्ट्रेस, या हम इसको बकलिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। और इलास्टिक लोड या बकलिंग लोड, पी ई स्टैंड फॉर इलास्टिक लोड या बकलिंग लोड, और ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी इलास्टिक स्ट्रेस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, एफ क्रिटिकल, ई का मतलब है कि ये तो हो गया इलास्टिक स्ट्रेस के इतना स्ट्रेस पे जाके फेलियर हो जाएगा। ऑन द सेफर साइड हम इसको फर्दर और कम कर देते हैं एफ क्रिटिकल करने के लिए, कि हम इसको 0.877, ये किस वजह से हो सकता है, मैन्युफैक्चर में कोई फेलियर आ सकता है, कोई फ्लॉस जनरेट हो सकते हैं, कोई रेजिडुअल स्ट्रेसेस उसमें आ सकते हैं, इसकी वजह से मतलब मैन्युफैक्चरिंग में या कुछ भी ऐसा है तो ऑन द सेफर मार्जिन हम इलास्टिक बकलिंग स्ट्रेस को फर्दर और रिड्यूस कर देते हैं, और सिर्फ हम उसका 0.87 दैट मीन उसका 87% कंसिडर करते हैं। सो क्रिटिकल स्ट्रेस वुड बी इक्वल टू 0.877 एफ ई, ठीक है, फॉर दिस रीजन। एंड फॉर द इन इलास्टिक पार्ट हमारे पास फॉर्मूला जाता है 0.658 एफ वाई डिवाइड बाई एफ ई इंटू एफ वाई। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द इन इलास्टिक पार्ट। सो अगर क्या करेंगे, के एल बाई आर की वैल्यू इंशाल्लाह आपको जब प्रॉब्लम करेंगे तो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। के एल बाई आर की वैल्यू जब इससे ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला, और जब के एल आर की स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो क्रिटिकल स्ट्रेस का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक हो गया जी। सो लिमिटिंग वैल्यू फॉर द के एल बाई आर, अगर वन के एल बाई आर स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज़, ठीक है जी, अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू लेस देन है तो एफ क्रिटिकल इस दिस, और अगर ज़्यादा है तो फिर ये हो जाएगा।
आपके लिए वैसे बेहतर ये रहेगा कि आप स्लैंडरनेस रेशियो से देखें, बट अगर आप उसको इफेक्टिव स्ट्रेस से भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिमिट है, बट आई वांट रिकमेंड कि आप उस चीज़ में उस चक्कर में पढ़ें। आपके लिए बेहतर ये है कि स्लैंडरनेस रेशियो फाइंड की और उधर से ही ये निकाल लिया। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस से देखना या इलास्टिक स्ट्रेस से देखना चाहें तो उसके लिए भी तरीका ये है। हमें पता है कि इलास्टिक स्ट्रेस इज इक्वल टू इलास्टिक लोड डिवाइड बाई ए, ठीक है, और ये हम फार्मूला भी कर चुके हैं कि पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एल बाई आर स्क्वायर। अब अगर इसका मैं कंपेरिजन ड्रॉ करूँ और के एल बाई आर, ठीक है, ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो एफ ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई के एल बाई आर, और के एल बाई आर का स्क्वायर जब मैं इधर ले जाऊँ स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो इक्वेशन बन जाएगी और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो हमारे पास बन जाएगा के एल बाई आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई एफ ई। ठीक हो गया जी। और अब ये एक इक्वेशन डेवलप होगी, तो हम ये कह रहे थे कि व्हेन के एल बाई आर इज़ लेस देन दिस, ठीक है, जैसे ये था व्हेन के एल बाई आर इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, तो सिंपली क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ के एल बाई आर की जगह ये पुट कर दिया, ये जो मैंने अभी ड्राइव किया, ठीक है, इस वाले से। तो कहने का मकसद ये कि वन के एल बाई आर इज़ लेस देन, दैट मीन्स ये वाली टर्म इधर पुट कर दी के एल बाई आर की जगह, तो हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप होगी, पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई एफ ई लेस देन इक्वल 4.7 ई डिवाइड बाई एफ वाई। और इसको मैं फर्दर अगर रीअरेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स इलास्टिक स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.44 एफ वाई। ठीक हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देख लें कि या तो स्लेंडरनेस रेशियो इससे कम हो, ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे, या अगर स्लेंडरनेस रेशियो से नहीं चेक करना चाह रहे, इलास्टिक स्ट्रेस से चेक करना चाह रहे हैं, तो अगर इलास्टिक स्ट्रेस की वैल्यू 0.44 वाई इससे ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो फिर ये यूज़ करें। इससे भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड ये वाली कंडीशन इससे चेक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा, रादर देन आप इस चक्कर में पड़ें। तो इस चीज़ को ख़त्म करें, आप बस इधर से देख के देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू से कम है तो आप क्रिटिकल यूज़ करें, और अगर एफ ई की वैल्यू ये अब गलती कर गया, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह बजाय लेस देन इक्वल टू लिखना चाहिए था 4.44 एफ वाई, ठीक है, ये चीज़ नहीं आती तो आपके पास ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इट्स दैट सिंपल। अच्छा, एक चीज़ और कहता है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड 200। हम पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर द कंप्रेशन मेंबर AISC कहता है कि फॉर द कंप्रेशन मेंबर स्लेंडरनेस रेशियो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये उसने लिमिट कर दी। जैसे टेंशन मेंबर्स के लिए 300 थी, ऐसे इसके लिए 200 देखी जाती है। ठीक हो जाएगा। अब चांसेस क्या हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोड्स ऑफ फेलियर क्या हैं, कि या तो कॉलम कंप्रेसिव फेलियर हो, ठीक है, कंप्रेसिव फेलियर का मतलब है कंक्रीट क्रश करना शुरू कर दे, जैसे कि ये इधर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाए, तो क्रशिंग हो सकती है। चांसेस क्या है कि फ्लेक्चरल बकलिंग हो जाए, लेटरल रिफ्लेक्शन हो जाए, जो कि लॉन्ग कॉलम से हो जाता है। और चांसेस क्या है कि अगर इसको टॉप से देखो, ये प्लान नज़र आ रहा है, तो ट्विस्टिंग आना चाहिए, ट्विस्टिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाए। तो जब ट्विस्टिंग इफेक्ट हुआ, रोटेट कर गई, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्जनल बकलिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? टॉर्जनल बकलिंग। जब उसमें ट्विस्टिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाए तो हम इसको टॉर्जनल बकलिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आपको क्रॉस सेक्शन में ऊपर से नज़र आ रहा है। उसके अलावा क्या है? फ्लेक्चरल टॉर्जनल बकलिंग। फ्लेक्चरल टॉर्जनल बकलिंग का मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन भी होगी, ये बकलिंग भी होगी, और ट्विस्टिंग भी इफेक्ट आ रहा है, मतलब वो ट्विस्ट भी कर गई और उसके अलावा बकलिंग, मतलब ये दोनों इफेक्ट को अगर मैं मिला दूँ, बकलिंग प्लस ट्विस्टिंग को हम बोलते हैं फ्लेक्चरल टॉर्जनल बकलिंग हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड, ये 4 किस्म के फेलियर मोड हो सकते हैं। इनकी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाई जाए तो वो ये है, कंप्रेशन फेलियर कुछ ऐसे हो सकता है, ये हो गया कि हमारे पास क्रशिंग होगी, ठीक है, कंप्रेसिव फेलियर हो गया। अनदर थिंग इज़, ये बकलिंग का फिनोमेना आ गया कि अगर उसमें बकलिंग होना शुरू हो जाए तो वो ऐसे होगी, ये मेरे पास आ जाएगा फ्लेक्चरल टॉर्जनल बकलिंग। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? फ्लेक्चरल टॉर्जनल बकलिंग कि हमारे पास लेटरल डिफ्लेक्शन भी होना शुरू होगी, ठीक है, और ट्विस्टिंग इफेक्ट आना भी शुरू हो गया, जैसे ये रोटेट होना शुरू हो गया। ठीक है, पहले अगर ये सीधा आ रहा था तो उसको अब क्या होना चाहिए? ट्विस्टिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो लेटरल डिफ्लेक्शन भी है और ट्विस्टिंग इफेक्ट आना भी शुरू हो गया। तो आपके पास एक ये फिनोमेना हो जाएगा। एंड देयर आर चांसेस कि लोकल बकलिंग होना शुरू हो जाए। लोकल बकलिंग का मतलब क्या है? लोकल बकलिंग का मतलब है कि कुछ पोर्शन, लेट्स से कि सिर्फ, लेट्स से अगर फ्लैंज, ये फ्लैंज हो गया और ये इसका वेब पोर्शन हो गया और ये का, अब इसमें देखा जाए तो फ्लैंज में फेलियर नहीं आया, लेकिन उसका क्या होगा कि उसमें वेब में बकलिंग होना शुरू की है। जैसे ये देख लें कि ये फ्लैंज वाला पोर्शन है, इसमें बकलिंग होना शुरू हो जाएगी और वेब वाला पोर्शन सीधा है। तो अगर कोई एक रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी कंपैरेटिवली उसकी थिकनेस कम है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि सिर्फ उस रीजन में फेलियर होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से देयर आर चांसेस कि
फ्लैंज बकल कर जाए बट वेब बकल ना करे, तो वो जो फेलियर होता है हम उसको बोलते हैं लोकल बकलिंग। लोकल बकलिंग का मतलब है कि किसी एक लोकल रीजन में फेलियर आना शुरू हो गया, इधर वो फ्लैंज में भी हो सकता है, वो वेब में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एक रीजन बहुत उसकी थिकनेस कम है तो देयर आर चांसेस उसमें फेलियर हो जाए, तो ये भी एक फेलियर मोड है, लोकल बकलिंग फेलियर मोड हो जाएगा। इसको भी हम चेक करते हैं कि लोकल बकलिंग तो नहीं होगी। सो लोकल बकलिंग अकर्स इफ सर्टन एलिमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर थिन, ठीक है। अगर एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को कुछ ऐसे बनाऊँ, लेट से डब्ल्यू सेक्शन है या आई सेक्शन है, तो अगर कोई एक सेक्शन है, लेट से ये एक है, उसकी थिकनेस काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये बकल कर जाए, क्या पता वेब बकल ना करे। सो ड्यू टू लोकल बकलिंग द क्रॉस सेक्शन इज नो लॉन्गर इफेक्टिव एंड मेंबर्स कंसिडर्ड टू बी फेल्ड। उसकी वजह से भी हम कहते हैं कि मेंबर फेल हो गया, ठीक है, नो लॉन्गर इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि अगर वेब स्टैंड कर रहा है फ्लैंज बकल कर गया तो वो फेलियर कंसिडर नहीं होगा, वो फेलियर ही होगा। इन डब्ल्यू आई शेप्स थिन फ्लैंज एंड वेब्स आर लाइकली टू अंडरगो रिंकलिंग। उसमें ये कहना चाह रहा है कि डब्ल्यू या एच शेप्स होती है, उनमें मोस्टली क्या होता है कि फ्लैंज या वेब में बकलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सियल लोडेड कंप्रेसर मेंबर मस्ट बी रिड्यूस इफ इट हैज़ एनी सिलेंडर एलिमेंट हो जाएगा। वो ये कहने का मकसद ये है कि अगर एक मेंबर है जिसमें लोकल बकलिंग हो रही है तो हम उसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हम उसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे। दैट मीन्स ये कि अगर लेट्स से क्रिटिकल लोड उसका आ रहा है 90 किप्स और हम उसको चेक करेंगे कि उसमें कहीं लोकल बकलिंग तो नहीं हो रही। अगर लोकल बकलिंग होने के चांसेस हैं तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि उसकी बजाय 90 के हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू लेट से सपोज मैं कह देता हूँ कि 70 किप्स कंसिडर कर लेंगे, सही है। सो ये चेक करेंगे, मेंबर डिज़ाइन हो गया, मेंबर फेलियर नहीं होगा, बट हम क्या करेंगे कि अगर उसमें लोकल बकलिंग इफेक्ट आ रहा है तो हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, ठीक है। सो चेक कैसे करेंगे कि लोकल बकलिंग हो सकती है कि नहीं सकती, तो इट इज़ विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ लोकल बकलिंग, कि उसकी विड्थ और उसकी थिकनेस की रेशियो निकालेंगे और वैल्यूज़ गिवन है कि फॉर द डब्ल्यू सेक्शन लिमिट्स गिवन है कि इससे निकालें, अगर वैल्यू इससे कम है तो लोकल बकलिंग नहीं हो रही, अगर ग्रेटर हो रही है तो फिर लोकल बकलिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए जैसे एक डब्ल्यू सेक्शन है, उस डब्ल्यू सेक्शन के मैंने अगर लोकल बकलिंग फ्लैंज की देखना है पोर्शन की, तो उसमें क्या करेंगे, लैम्डा इज़ द रेशियो ऑफ इसकी विड्थ हाफ विड्थ डिवाइडेड बाय टी उसकी थिकनेस, ठीक है। सो हेयर बी स्टैंड फॉर बी एफ डिवाइडेड बाय 2, मतलब फ्लैंज की जितनी विड्थ है उसका हाफ कर देंगे, फ्लैंज की विड्थ है कितनी बी एफ, उसका हाफ कर दिया तो ये हमारे पास बी आ जाएगा, और टी इज़ द थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, तो बी एफ डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूला आ जाएगा बी एफ डिवाइडेड बाय 2 टी एफ। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैंने इस सेक्शन की लोकल बकलिंग इफेक्ट देखना है फॉर द फ्लैंज कि फ्लैंज में लोकल बकलिंग तो नहीं होगी, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे बी एफ डिवाइड बाई 2 टी एफ एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू लेमडा आर इज इक्वल टू 0.56 ई डिवाइड बाई एफ वाई, ठीक है। हम ये वैल्यू निकालेंगे, फिर इस सेक्शन के लिए इस फार्मूला से वैल्यू निकालेंगे, और अगर ये वैल्यू ये जो हमने निकाली इससे कम है तो फिर तो लोकल बकलिंग इफेक्ट नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर ये वैल्यू ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर इससे ग्रेटर हो जाती है फिर लोकल बकलिंग इफेक्ट होगा, और हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ को फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड लिमिट देन द एलिमेंट इज सिलेंडर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मस्ट बी रिड्यूस, हमें उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा। इधर फार्मूला गिवन है, इसका एक पूरा टेबल गिवन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर फॉर द जो हम क्या कह सकते हैं फॉर द फ्लैंज पोर्शन हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, एंड फॉर द वेब पोर्शन, वेब के लिए क्या होगा कि वेब की हाइट और उसकी थिकनेस, हाइट डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.49 ई एफ वाई। अगर इसकी वैल्यू से कम है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो फिर देन अगेन मेंबर सिलेंडर हो जाएगा, चांसेस हैं कि इधर लोकल बकलिंग हो, और हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रेंथ फर्दर रिड्यूस करनी पड़ेगी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो आर गिवन इन AIC टेबल, हमें AIC टेबल में ये मिल जाएंगी, ठीक है। दिस लिमिटिंग वैल्यूज आर आल्सो गिवन द मैकॉर्मिक की बुक में भी आपको ये मिल जाएंगी, बट देन अगेन मैंने आपको इधर कुछ शो भी हो रही है स्लाइड्स में कि अगर डबल एंगल सेक्शन है, ठीक है, एक ये एंगल है एक ये एंगल है, दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। सो अगर उससे देखना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। डबल एंगल भी हो सकता है, टी सेक्शन भी हो सकता है डिफरेंट, जैसे अगर ये वैल्यू है अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ये अगर वेल्ड कनेक्शन हो, अगर हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर बोल्ट कनेक्शन हो तो आपके पास यूँ कर सकते हैं, देन अगेन चैनल सेक्शन हो तो उसके लिए भी लिमिट्स आपको गिवन है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, हॉलो पाइप सेक्शन, तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए हमें लिमिट्स गिवन है और देखना पड़ता है कि कहीं लोकल बकलिंग की तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। इन मैकॉर्मिक बुक उसने भी गिवन है कि देन अगेन अगर आई शेप सेक्शन है तो उसके लिए लिमिट ये है, और फाइंड कैसे करेंगे इससे, ठीक है। ये फार्मूला है और इसको क्रॉस चेक करना है इससे, अगर इससे कम है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो हमें उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। देन अगेन फॉर डिफरेंट शेप्स आपके पास ये फार्मूला गिवन है।